author and very special guest, Shri Pramod Kapoor Sahab. Welcome, sir. Director, OTS, Shri Ashwini Bhagat, sir. Mahatma Gandhi ji, also fondly known as Bapuji. It is a double celebration for us because OTS or HCM REPA is celebrating the weekly 1 week celebrations for its 63rd foundation course, which has about 200 state civil service probationers and our Chief Secretary and also heading. Thank you to our two esteemed guests, author and scholar and a very keen enthusiast on Gandhi, Shri Pramod Kapoor Sahab, who's written this fantabulous book on Gandhi and illustrative biography. I welcome you also, sir. Thank you so much. I would also like to tell you that for all those people sitting in the audience, our lovely book-loving audience of Jaipur, our Chief Secretary, sir, has just now, a few minutes back, inaugurated the exhibition. In fact, the entire book of Shri Pramod Kapoor Sahab has been printed on 121 feet long, the finest khadi, and is on display in the book form, in the form of an exhibition, which our chief guest has just now inaugurated and is now open for public viewing. So I am grateful to you. I would also want to let all of us know that Shri Pramod Kapoor Sahab has been extremely magnanimous in getting this printed and giving this to us, to the state of Rajasthan, for it to be displayed later on in the Jawahar Kala Kendra for a larger outreach on Gandhi. I'm so grateful to you, sir. It's a very, very expensive thing, and coming from him, I am really beholden to you, sir, for doing the honors. I also have with us Padma Shri, Dr. Pushpesh Pant Sahab. Of his 7 decades here, I've known him from 2.5 decades. He was my professor in JNU. I have a very, very affectionate connect with him. I'm extremely beholden to you, sir, for agreeing to sit in conversation today. And I'm sure, as the two of you talk, and since I'm going to be introducing you in detail later on, we look forward to your conversation, sir. And I will be failing in my duty if I don't extend my gratitude to the director, HCM REPA, OTS, Shri Ashwini Bhagat Sahab, because on one simple request, in just a nanosecond, he agreed to host all of us here today. I am especially beholden to you. Also like to warmly welcome Mrs. Kiran Kapoor, madam, the better half of the author, who's traveled with her, who's worked with her, who's helped him choose the best of pictures for both the book and the exhibition. So I very warmly welcome you, ma'am. And I would also like to welcome our two guests from Delhi, our professor from JNU, Shri Rajan Kumar ji and Manjeet ji. Manjeet ji has also worked with the government earlier. I welcome you both. Now, if I don't thank my media and welcome the media, who has been very, very gracious and generous, always covering our events and taking it to the last man standing, I think I'll be not doing justice. So thank you very much for everybody who's present, because today we have a lot of other functions given the important day that it has today. And also a very special thanks to everybody, all our senior IAS officers who have taken time, spouses, Beena Kart Madam ji, Kamla Basin ji, everybody who I see in the audience, Sudhir Verma Sahab, I.C. Srivastava Sahab, all our veterans and come every occasion that we have. So thank you so much. I welcome you. I will not be standing between all of you because we have a longish day today. I will be introducing the authors as we come closer to the book conversation. I will also be introducing the book conversation. I'll just tell you the flow of the program. I will request our Chief Secretary, sir, to give us an overview, because the entire state has dedicated this year and the next celebrating Mahatma Gandhi's 150 years. So I will now request our Chief Secretary, sir, Shri D.V. Gupta ji, and I think it is on his directions that the IAS Association
has been revamped and revised, and that we have got this platform to connect the civil servant and the civil society, because it is under his able guidance and dynamic leadership and his own Vidhan Sabha elections. So we thank you, sir, for showing us the slide, and I'm so grateful to you, sir. I now request you to give a welcome and keynote address for this little occasion. Thank you so much, sir. प्रमोद कपूर साहब, पुष्पेश पंत साहब, मुग्धा जी, Ashwini ji, all the esteemed guests. I am really happy to be here for this book conversation titled Gandhi, an Illustrated Biography. And from the few glimpses that I saw while inaugurating the exhibition, it is a mind-boggling thing, and all the illustrations, documents, and whatever is displayed actually gives a beautiful picture of the entire thing. And I hope, because I have not gone through the book, I cannot discuss that, but once the two giants here have a discussion, I think once it unfolds, everybody will enjoy it. Gandhi, as we know, that he was not only an individual, but an institutional in himself. And a complete philosophy, his life was a complete philosophy. And I think he is one person in the modern era where maximum research has taken place. So many Gandhian researchers have done work, and so many Gandhian institutes are there. And during our childhood, we actually grew up with reading about Gandhiji. And luckily, my grandfather worked with Gandhiji, so I had a lot of first-hand information through him about Gandhiji, and we studied a lot. Every book of Gandhiji was, I think, I must have gone through before going to college in our school days. And he used to ask about his philosophy and what have you learned from his life. And everybody knows about his mantras of Ahimsa and Satyagraha, through which he was instrumental in bringing freedom to the country. And to enable the common man as well as the administration to internalize his life messages and his philosophy, serious and concerted efforts have been made by the state government. And as everybody knows, that in the country his 150th centenary was celebrated from 2nd October 2018 to 19. But the state government of Rajasthan, decided to continue for one more year. And from 2nd October 2019 up to 2nd October 2020, these celebrations will continue. So here in Rajasthan, we have made art and culture as the nodal department for all these celebrations. And a state level committee has been constituted under the chairmanship of the Chief Minister, where major Gandhian philosophers like Mr. Subba Rao and others and eminent Gandhian practitioners are part of that. And periodical meetings of this committee take place, and where time to time suggestions for the future are also given. I want to highlight, because I won't go on Gandhiji now, but I want to highlight some of the major initiatives taken by the state government during for these celebrations. The first department which is in the focus is the school education department. And in the school education department, the first task which has been taken up by the state government is revision of textbooks to incorporate values of peace and non-violence. So some of the books have been will be rewritten to include these new chapters there. Then revision of textbooks to give more focus to the freedom struggle and role of Gandhiji, which for some reasons is getting diluted for some time. Then revised syllabus in the 2020 academic session to incorporate value education and moral science classes. Schools to have libraries with a Gandhi corner. Every school, at least government school, will have a Gandhi corner where these things will be displayed properly. Then a Gandhi Kaksh to be set up in each primary and upper primary school for conducting weekly discussions on Gandhian themes. A weekly session on digital content. Now it is a modern era, so digital
education is a must. So a weekly session on digital content on Mahatma Gandhi in schools equipped with computer labs. Distribution of Gandhian literature in all the schools. Conducting of Gandhi exam by Gandhi Smarak Nidhi to disseminate Gandhian philosophy. This used to be a regular feature. Earlier when we were kids, we used to give these exams, but for last few years this is missing, so we are reintroducing this thing. And then discussion on Gandhi's life in schools on every Saturday, screening of the films and documentaries based on his life, elocution competitions, and quiz on different aspects of Gandhiji's life. These activities will not only be taken up in government schools but in private schools also. Then we'll organize a series of mini commemorations beginning with the Quit India Movement anniversary on 8th and 9th. This has been done already. The other events to be commemorated are 19th December 2019 when the Purn Swaraj declaration was there. 12th March 2020 when Dandi March started on that day. 13th April 2020, a sad day, Jallianwala Bagh massacre took place. So these events will be properly on those days. Special functions will be there. Collectors will have already organized 3-day Gandhi festivals from July to October 2019. All districts have organized these events. There was a big rath of depicting all Gandhi literature and some Gandhi rare photos, and it traveled from one district to another, and all the 33 districts were covered through this method, and lot of curiosity as well as interest has been generated because of these yatras. Other department which has been in focus is the Youth Affairs Department. A state level camp will be held every quarter of the year at different locations of the state to spread the message of national integration and upholding the values of freedom, human dignity. And residential youth camps for the age group of 15 to 20 on the pattern of camps organized by National Youth Projects. Those will take place. Then Department of IT will has already launched a Gandhi portal for disseminating information about activities in the commemoration year, and later it will be a permanent portal for the use of school education and college education as well as for the skill development department through creation of innovational digital content conveying the messages of Gandhiji in a child/youth friendly way. Then a social media campaign and intensive media publicity of the commemoration year by DPR, and a coffee table book will be released by Tourism Department to document all the major programs and events held in this entire journey. Art and culture is the nodal department, as I informed earlier. A special decision has been taken that a peace and non-violence cell will be set up within the Secretariat, and this process has started. Anytime this will be a reality, and an advisory group of eminent Gandhians will be there to advise. They will be part of that cell, and they will be advising the government for the future actions also. So this will be a permanent feature. A Gandhi division to be created in the Art and Culture Department. We will organize a national level art summit on the theme of Gandhiji and Gandhian philosophy. A national level theatre workshop on the theme of peace and non-violence. A national level performing arts festival dedicated to the father of the nation. Curation of a special exhibition on Mahatma Gandhi. This was inaugurated on 2nd October in Jaipur. Then we have created a mobile exhibition which has already I said about, which has traveled in the districts. Then setting up of a Gandhian Institute. This is again a major thing. Land has been identified, and very soon this Gandhian Institute will be, this construction will start. And a 50 crore budget has been kept for Gandhi Museum. And a Gandhi panorama which will become part of the Gandhi Museum will also be created. For Khadi, so many exhibitions, fashion shows, seminars, live demos, workshops to promote Khadi will be taken up. For by the jail department, they will draw up a calendar of events
for inmates consisting of special talks, discourses, and cultural events, and skill programs will be imparted. So new skills will be actually taught to the inmates. About the Environment Department, some state action plan on climate change. Then IEC campaign with LSG department has already been taken up, where community participation for cleanliness was the Mool Mantra of Gandhiji. So a drive for solid and solid waste management will be taken up. Then on the celebration of World Environment Day, 5th June 2020 will be actually dedicated to Gandhiji's message on environmental protection. By Social Justice Department, one major event was done on 2nd October, and similarly a public awakening rally will be held, where all the Harijan youth will also be part of that. For tribal affairs, one of their major schemes will be dedicated in the name of Gandhiji. Similarly, for minority affairs, upgradation of madrasa, modernization, etc. will take place. Then for rural development, identification of one model Gandhi village in every district. This has been decided. And Department of Administrative Reforms will already has issued an order for making logo for Gandhi 150 mandatory for the entire year. All official communications will be having this kind of logo. A Gandhi week was celebrated from 2nd to 9th October, where morning prayers, Prabhat Feris, etc. were part of it. And then a silicosis policy was launched on that particular day. Everybody knows that silicosis is a killer. Basically, once a person catches this disease, it becomes very difficult to come out of it. Then LSG felicitated staff, the Safai Karmcharis, and gave them Ambedkar Awards. Khadi organized a symposium and expo on Gandhi. And similarly, so many other activities took place. A Khadi heritage show was there, a international art camp at Central Park, and play on Mahatma Gandhi, Bharat Bhagya Vidhata, was also done. Participation of youth, women SHGs, Panchayati Raj institutions, SC, ST and minorities. This has been ensured in all these programs. And good and transparent governance with aim of wiping tears from the eyes of everybody. This is the Mool Mantra, and the Public Accountability Bill with timelines and responsibilities will be very soon introduced. I think I have taken a long time. I compliment the Literary Society of IAS Association for this very timely launch and this book conversation when we are celebrating this Gandhi 150 anniversary year. And as I could see that it is an extensively illustrated biography full of textual materials like letters, documents, notes, media extracts, cartoons, commentaries, and interwoven dexterously in a chronological manner. It is very easily intelligible, and I'm sure it will throw light on hitherto unknown facets of Gandhiji's life and personality. I really compliment the Literary Society, and I thank the two guests here, and thanks for calling me. Jai Hind. Our Chief Secretary, sir, has actually given you a vast canvas and a whole array of things that the government is doing right from 2018 down to the next year. Please feel free to be a part of all the government functions on Gandhi. We'll be happy to have you and welcome you. गांधी जी एक बात बहुत अच्छी कहते थे जो हमारे प्रोबेशनर्स और हमारे सभी लोगों को समझ में आएगा, बिकॉज ये एक छोटा सा सरकारी कार्यक्रम भी है जिसमें सब पब्लिक सर्वेंट्स भी हैं. तो गांधी जी कहते थे, एंड आई विल कोट हिम, आई एम बट अ स्ट्रगलिंग, अर्निंग, हम्बल सर्वेंट ऑफ इंडिया एंड देयरइन ऑफ ह्यूमैनिटी. आई थिंक इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है. नाउ लेट मी इनवाइट प्रगति कि हम जो हैं OTS की तरफ से आज अपने देश को शाब्दिक वेलकम तो हमने किया ही है आप सब लोगों का. इससे पहले कि हम फिल्म देखें, मैं OTS के ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले may I request Himanshu, our very young, our appreciation
and welcome, sir, our Chief Secretary, sir, Shri D. Gupta, sir, please. Now, may I invite Shri Bissa Saab to kindly come and also give a plant to our Padma Shri Dr. Pushpesh Pant Saab. Bissa ji is also, in fact, heading the Center for Non-Violence and Peace in India. Sorry, I think I forgot to call Shelly ma'am. I request Shelly ma'am to please come and hand over a plant to our Director, OTS at CM RIPA, Shri Ashwini Bhagat sir. So before we watch the film, I'll just leave you with a nice, very inspirational quote that Gandhiji himself said about describing himself, and maybe is very befitting for this occasion. And in the meantime, 77, tiny, shrunken and bald, and yet he had defied the greatest empire in the history of the world. She pleaded to be allowed lighting equipment, for the room was impossibly dark, but was only permitted 3 peanut flashbulbs. The first bulb failed with a delay. Well, he got into me and continues to remain ever since. To bring them all together in the book was to bring alive really one of the most revered figures. And witness the peaceful transfer of power. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Yet, for the chief architect of the freedom movement, Mahatma Gandhi, the day's routine remained unchanged. He preferred to stay in Calcutta and work for peace amongst Hindus and Muslims. 1948, Gandhi left a discussion with Patel for a 5 p.m. prayer meeting, bidding his last goodbye to him. Since he was running late, Gandhi took a shortcut to the waiting crowd and his assassin, standing in front wearing a military-style khaki dress, was Nathuram. Mine may today be a voice in the wilderness, but it will be heard when all other voices are silenced, if it is the voice of truth. I thought when I was seeing the movie and that we have gathered here today, on this very, very solemn note, I have been instructed by OTS that we would like to request our chief guest and also our esteemed guests to unveil the OTS newsletter and the brochure. So just a small little ceremonial thing before we, and till formally, so that we can then launch into the book conversation. University, and has over the course of his illustrious career conceived and produced award-winning books that have proven to be game changers in the world of publishing. Be it the hit Then and Now series, the seminal The Unforgotten Maharajas, or New Delhi, The Making of a Capital, this book on which we are going to hold a conversation has been translated in 7 world languages and also in Hindi and Marathi, and I'm given to believe and understand that there is some conversation of doing it in one of the southern languages. His book has also received an MGIP International Award in 2016. In 2016, he was conferred with the prestigious Knight of the Legion of Honor, the highest civil and military award in France, for his contribution towards producing books that have changed the landscape of Indian publishing. He is now currently working on his forthcoming book, which I'm also told is going to be a masterpiece, because it touches that little part of history which has remained edited for a very, very long time from the Indian freedom movement. The book is called 1946, The Other Mutiny, which is based on the revolt by the Indian soldiers, which, as I mentioned, has not found a place in history so far. So we also look forward to your book. Many compliments to you for such a wonderful writing and publishing career, and we hope to see many more books from your side.
So yes, we must applaud our guests. He was born in 1946, homeschooled for a while before he entered the formal portals of school and colleges, studying at both Nainital and Delhi. He has degrees in history, international relations, and law. He taught at Delhi University initially and then for almost 4 decades in JNU. He prefers to call himself as a sometime teacher, author, columnist, political analyst, and an independent producer of documentaries. He's obsessed by food. He's a food connoisseur, and so when I did put up your fact that you are in Jaipur, a lot of people from Jaipur said that he is an expert, so a lot of rave comments about you. So he has published a voluminous book on food and recipes and cuisine called The Cookbook, which has figured on the New York Times Best Books of the Year in 2010, and it's a huge, I think it's a very, very comprehensive book covering all food recipes in India. He has published more than 50 books, both in Hindi and English, and I welcome the both of you, sir, and now I will not stand between anything, and I'll also request our Chief Secretary, sir, and Director, sir, to kindly take their seats on the sofa so we can allow our author and प्रमोद बहुत से उस प्रकाशक तक गई थी और प्रमोद मेरे पहले प्रकाशक हैं। तो जो मैं बातचीत शुरू करना चाहता हूँ, मैं प्रमोद से वो सवाल पूछना चाहता हूँ जो मुझे हमेशा कुलबुलाता रहता है कि आप प्रकाशक हैं और ऐसी अद्भुत किताबों के प्रकाशक हैं जिसने इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है, तो फिर क्यों एक उम्र के पड़ाव पर आपको लगा कि गांधी पर आपको ये किताब लिखनी चाहिए? मुझे याद पड़ता है कि नंदा साहब जो गांधी जी के जीवनीकार हैं, वो कहते हैं कि जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई, मैं अचानक रोने लगा। पंजाब की सड़कों में फिर रहे थे और उन्हें लगा कि मेरा इस आदमी से क्या नाता है जो मेरे रिश्तेदार नहीं है। और तब वो चूँकि रेलवे के अधिकारी थे और फिर उन्होंने इतिहासकार की दृष्टि से गांधी की जीवनी का अध्ययन शुरू किया। और आपने भी जब वो 98 पूरे गांधी जी के संकलित पूरे किताबों का अध्ययन किया, 400 पुस्तकें पढ़ी, तो आपने अपने जीवन को मोड़ा प्रकाशन संपादन से लेखक की भूमिका के लिए। और आपने कहा कि एक दिन मुझे लगा कि मेरे प्रकाशकी इंस्टिंक्ट ने कि मुझे करना चाहिए। मुझे लगता है वो प्रकाशकी इंस्टिंक्ट से ज़्यादा कोई चीज़ होगी जब कहीं ना कहीं आपको लगा हो, जो फिर आप अक्सर कहते हैं कि हम में कहीं ना कहीं गांधी थोड़ा बहुत है, तो कहीं ना कहीं वो कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत तो देखिए पब्लिशर के नाते ही हुई। बहुत सी क्लासिक किताबों को मैंने इलस्ट्रेट किया था। उसमें एक थी मैन हू किल्ड गांधी, जो मनोहर मरदावकर साहब की लिखी हुई थी। और वो मुझे याद है 1975 में जब मैं मैनेजमेंट ट्रेनी था मैकमिलन में, तो मैन्युस्क्रिप्ट पहली मैन्युस्क्रिप्ट मुझे दी गई थी और कहा कि इसको पढ़ के 2 रात के अंदर आपको बताना है कि इसमें क्या खासियत है। उसको ग्रिपिंग, उसको ग्रिप ऑलमोस्ट लाइक अ थ्रिलर। तो जो मनोहर मरदावकर साहब तो बहुत पहुँचे हुए लेखक थे वैसे भी, और उन्होंने बड़ा इतनी रिसर्च करके आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद व्हाट ही हैड डन। अब चैलेंज ये था कि इसको इलस्ट्रेट किया जाए, तो फिर मैं गया नेशनल म्यूजियम में जहाँ पर गांधी जी के असैसिनेशन के सब पेपर्स थे। बड़ा लकी था कि उस समय सब आप फाइल खोल के देख सकते थे। देखा गया उसको, उसमें कुछ चीज़ें जो इस बुक में है वो उस वक्त की 1975 की कलेक्शन की भी हैं। जैसे टिकट थी अस्थि स्थल तक के ट्रेन में लोगों को जो टिकट मिली थी, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें, तो वो इलस्ट्रेट किया, वो कहीं ना कहीं दिमाग में रह गई थी। तो जब और वो किताब आज पब्लिश हुए कम से कम 1998 में हुई थी, जब गांधी जी के 50 साल हुए थे असैसिनेशन के। आज हो गया 21 साल उसको।
आज भी हर साल हम लोग उसको प्रिंट करते रहते हैं। वो बड़ी नायाब, बड़ी अच्छी किताब बन गई थी। और ये इस पे जो भी है वो मनोहर मलगांकर साहब का है, मैंने तो खाली फोटोग्राफ लगाया था। तो जब गांधी जी का 150 ईयर्स ऑफ बर्थ सेंटिनरी आया था, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं गांधी जी की एक जो उनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो क्यों ना मैं इसको इलस्ट्रेट करूँ। एंड सच बात तो ये है कि मुझे ये भी अंदाज़ नहीं था, ये हो गया करीब 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए, कि गांधी जी ने 1922 तक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि माई लाइफ इज़ अ ओपन बुक एंड आई डोंट वांट टू राइट एनी मोर अबाउट माई लाइफ, लेट पीपल राइट अबाउट इट। तो जब अब ये हुआ कि भाई अब 1922 से फिर मैं खुद बाकी की लाइफ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और जिसमें इतना कुछ उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए किया था, तो उसमें मैं खुद उसको क्रिएट करूँ। तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, प्रोफेसर मुशीरुल हसन। तो उनके पास मैं गया, मैं कब मुशीर हमें भाई ये हेल्प करिए, आप ये मैंने बड़ा काम ले लिया है, वैसे अभी किसी को बताएं लेकिन अपने आप के लिए ले लिया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। तो बोले ऐसा करो कि ये महात्मा गांधी की कलेक्टेड वर्क्स पहले पढ़ो। तो मैंने सोचा 5-7 वॉल्यूम 10 वॉल्यूम होंगे, चलो पढ़ लेता हूँ। अब जब शुरू किया तो पता लगा वो तो 100 वॉल्यूम है। तो मैंने करीब 9 महीने दिन रात उसको पढ़ा। ये नहीं कि वो मेहनत का काम था, वो इसलिए कि ऑब्सेशन सा हो गया था। एक एक पन्ने में जो चीज़ें मुझे पढ़ने में आई, वो लगा कि मतलब ऐसा इंसान क्या हो सकता है कभी उसमें। और सबसे अच्छी बात थी कि सब पूरी खुली किताब थी। जो क्रिटिसिज्म था उनका, वो भी उन्होंने उतने खुले से रिकॉर्ड करके रखा था, और बाद में लोगों ने उसको कलेक्टेड वर्क्स रखा है। और जो तारीफ थी और जो चिट्ठियाँ थी, ये सब कुछ। तो मैंने करीब 9-10 महीने उसको पढ़ के एक स्पीड रीडिंग किया। ये नहीं कहूँगा हर एक किलो, वो तो कम से कम 50,000 पेज थे करीब। तो उसका मैंने फिर अपना सेलेक्टेड वर्क्स बनाया कि जो मुझे पसंद आ रही थी कहानी, और वो करीब 17 वॉल्यूम बने फिर 100 में से। वो आज तक मैंने फिर प्रिंट करा के मैंने रख लिया। और सबसे बड़ी जो सफ़र के लोग उसमें, वो मेरी फैमिली थी। तो सुबह शाम दिन में रात को जब भी बात हो तो बस यही बात हो। बच्चे भी कहें कि इनको क्या हो गया है भाई, ये खाली पता है गांधी जी ये करते थे, पता है ये गांधी जी ऐसे करते थे। तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। और जैसे मुग्धा जी ने भी कहा, इनको सबको मैं आपके साथ जब भी चाहे वो पूना में गए हम और बनारस गए, और नहीं, मुझे आपसे साबरमती जाना सबसे अच्छा लगता है कि साबरमती जब हम गए तो मुझे त्रिदीप से आपने मिलवाया, और वो त्रिदीप कॉफ़ी पीते थे, और तब वो साबरमती आश्रम के निदेशक थे। तो वो इस अंदाज में कॉफ़ी पीते थे। आज सवेरे हम लोगों ने बड़ी अच्छी कॉफ़ी पी है कि वो कहते कॉफ़ी पीना लगभग साबरमती में किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में शराब पीने जैसा था। और गांधी जी की जीवनी में एक प्रसंग है कि कस्तूरबा सिर्फ कॉफ़ी पीती थी और आश्रम में कोई कॉफ़ी नहीं पीता था। उसके कई कारण थे गांधी जी के, मगर आप जो मैं कह रहा था कि उस समय जो गांधी जी को पढ़ा, तो वो एज आई ऑलवेज सेड, सब जहाँ पर आपके साथ में चर्चा हुई है किताब पर, कि वंस गांधी गेट्स इनटू यू, ही नेवर गेट्स आउट। दैट आई प्रॉमिस यू। आप अगर 1-2 किताबें पढ़ लीजिए अच्छी उनकी, जैसे लुईस फिशर की है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, वो अगर आप पढ़ लें तो ही विल नेवर गेट आउट ऑफ योर, एंड यू फाइंड अ लिटिल बिट ऑफ गांधी। कि आप यू आर बीइंग वेरी काइंड कि आप लुई फिशर का उसका सुझाव दे रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रमोद की अपनी किताब एक वो होम्योपैथिक दवा की डोज सी है कि छोटे आकार में उसकी भी अगर लत आपको पड़ जाए, तो इन्होंने जब ये छप रही थी तो उसका प्रूफ मेरे पास भेजा और कि आप पढ़ लो। और तब से ये हुआ कि जितनी बार मैं पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि शायद कुछ चीज़ छूट गई है, दोबारा पढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो आपने इसे कंसीव किया था एज ए पिक्चोरियल बायोग्राफी, तो बड़ी विचित्र चीज़ें हैं। गांधी की पिक्चोरियल बायोग्राफी इसके पहले भी हैं, मगर उसमें टेक्स्ट इस तरह का नहीं है। डॉक्टर गोपाल ने नेहरू की पिक्चोरियल बायोग्राफी लिखी है, मगर उसमें फिर टेक्स्ट उस तरह का नहीं है जो उनका। आपने ये जो संतुलन किया है चित्रों का और शब्दों का,
और एक जो आपने कहा ना गांधी अगर आप पे घुस जाए तो निकलता नहीं आपकी हाड़ मांस मज्जा से, तो मुझे लगता है एक और रोचक बात है, अभी फिल्म भी ये बड़ा वो था कि बीच में थोड़ा अंतराल आ गया, क्योंकि फिल्म आपने इतनी अच्छी बनाई है कि वो इतनी मर्मस्पर्शी है कि उसके बाद शायद सीधे बातचीत शुरू करना कठिन होता। जैसे आप कहते हैं कि गांधी जब भारत आए तो वो 25 वर्ष के विदेश प्रवास के बाद आए, और जब वो विदेश गए थे तो वो 19 वर्ष के थे, लगभग 18-19 वर्ष के, तो लगभग जी वो एक अधेड़ व्यक्ति के रूप में भारत लौटे। तो मेरे मन में कुतूहल और है कि अपनी आत्मकथा में तो 22 तक का प्रसंग करते हैं, तो जितने उनके ऊपर प्रभाव थे वो शायद पड़ चुके थे, तो गांधी उस सांचे में ढल चुके थे। तो जो स्मट्स का आपकी उस प्रदर्शनी में भी उल्लेख है कि चलो संत जा रहा है, अच्छा है, रफा दफा हो, लौट के ना आए, तो गांधी जी ने संत पद तो भारत आने के पहले प्राप्त कर लिया था, मगर भारत में वो पहचाने नहीं जाते थे। तो वो जो स्थिति है, तो आपने आई थिंक जब when he came to India, I think his huge reputation preceded him. तो यहाँ पर जब वो आए तो उनको लोग भगवान की तरह मानते थे, खासकर जो मतलब तिलक महाराज या गोखले साहब तो खैर उनके शिष्य की तरह उनको देखते थे, लेकिन दोस्त की तरह भी देखते थे। बड़े अच्छे कॉन्वर्सेशन मैंने पढ़े हैं इन दोनों के बीच में। और जो लीडर्स थे जैसे मोतीलाल जी, उसके बाद नेहरू जी, आचार्य कृपलानी वगैरह, श्री राजगोपाल आचार्य जी, ये लोग इनको एक अपने आप को उन्होंने एक लेवल ऊपर लेके आए थे यहाँ पर, और एक कॉमन मैन के लिए तो वो महात्मा थे। इनफैक्ट सो मच सो कि जब वो कितनी कहानियाँ हैं किताब में, जो मुझे कुछ याद है, कुछ मैंने लिखी, अब उतना टाइम नहीं होगा, मैं और भी बातें करूँगा। लेकिन जैसे कि चौरी चौरा का इंसिडेंट है, सबको पता है कि कैसे चौरी चौरा में जब लोगों ने पूरी पुलिस ने जब गोली चलाई हवा में, तो जितने लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे वो कह रहे थे कि किस तरह की गोली चल रही है, इसमें तो कोई घायल ही नहीं हो रहा है, ये महात्मा की कृपा है कि गोली जो है वो पानी की तरह बरस रही है नीचे। तो इस तरह का लोगों में और सच बात भी है कि कुछ तो कुछ था ही उसमें, कि 2 बार ऐसा हुआ उनके साथ कि जब वो टॉल्स्टॉय फार्म बना रहे थे जो कि जंगल था, और उसके बाद फिर जब ये साबरमती आश्रम में आए, तो जब आप आश्रम बनवा रहे थे, तो दोनों बार द मोस्ट पॉइजनस स्नेक एक्चुअली गोज ओवर हिम एंड डजंट टच हिम एंड तो किसी ने पूछा सच वाले बोले हाँ यस द जेंटलमैन एक्चुअली क्लाइम्ड ऑन टॉप ऑफ मी एंड देन जस्ट क्रॉल्ड ऑफ, यू नो। तो इस तरह की ये सब चीज़ें उनकी, जैसे मैंने कहा किताब में तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो दैट रेपुटेशन प्रीसीडेड हिम एंड दैट हेल्प्ड हिम इन even the adversaries, like जिन्ना ने पहले इनको वेलकम दिया था, पहला वेलकम जो 1915 में जब 9 जनवरी आए थे, बॉम्बे आए, तो पहला वेलकम और जो गार्डन पार्टी सर पेटीट हॉल में हुई थी वो जिन्ना की हुई थी। एनी बेसेंट जो उनको मतलब इतने ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ, सब बाद में धीरे धीरे उनसे मतलब डिफरेंस ओपिनियन वगैरह हुए, ये सब जो है इनको एक बहुत उस निगाह से देखते थे कि ये बहुत बड़ा आदमी कोई आ रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में इससे बड़ी बात तो कोई कर ही नहीं सकता, मतलब इससे ज़्यादा माहिर नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो दैट हेल्प हिम अ लॉट टू बिकम अ महात्मा ही है। प्रमोद, उसमें एक बड़ी पेचीदगी है कि महात्मा वो हैं, महामानव वो हैं, अवतार शायद हैं, मगर हिंदुस्तान के आम आदमी का रिश्ता जो गांधी जी से था वो बापू वाला था, तो वो हर घर के लिए एक अपना बुजुर्ग सा भी थे, मगर अपने परिवार में जो उनके रिश्ते थे वो थोड़े तनावग्रस्त रहते थे, एक लड़की के साथ कम से कम। मगर उस तक आने के पहले मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। अभी मुख्य सचिव महोदय ने उन कार्यक्रमों का उल्लेख किया जो अगले वर्ष में राज्य सरकार करेगी, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम स्कूलों के थे, और आपकी इस पुस्तक में एक पक्ष वो निकलता है जब गांधी जी शिक्षक भी थे, जब वो फिनिक्स में या टॉल्स्टॉय आश्रम में थे, तो वो अपनी अध्यापक की भूमिका को भी बड़ी गंभीरता से लेते थे। और आपके परिचय का एक पक्ष जो अछूता रह गया था कि आपके जीवन का एक पक्ष भी एक समाचार पत्र के संपादक का रहा है, मुझे याद पड़ता है संडे मेल के ज़माने वाला।
तो जो गांधी की पत्रकार की भूमिका थी, या गांधी की शिक्षक की भूमिका थी, या गांधी के भारत आने के पहले खेतिहर की भूमिका थी, और उन्होंने उल्लेख किया पर्यावरण का, स्वच्छता का, तो गांधी जी के लिए ये तरह से कुछ बुनियादी बिंदु थे जो आज़ादी की लड़ाई से कम महत्वपूर्ण नहीं थे। आज जब हम उनकी आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं, फिल्म में भी हम दांडी मार्च देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गांधी के उस पक्ष को लगभग भूल जाते हैं जो गांधी के अपने जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण था। देखिए, शिक्षक तो वो शुरू से थे और अंत तक थे, हमेशा लोगों को सिखाते ही रहते थे, और बड़े कड़े और बड़े स्ट्रिक्ट थे, खासकर अपनी फैमिली पर तो ज़रूर थे। और वो इसलिए कि आई सपोज एनी पब्लिक पर्सनालिटी जिसको एक एग्जांपल देना है कि भाई हम अपने घर में ये कैसे कर सकते हैं, अगर ये चीज़ बाहर सिखानी है हमें, उसमें ज़रूर ये थे। और हो सकता है उसमें फैमिली सफ़र भी की, खाली एक बेटा नहीं, सभी बेटे और वाइफ वगैरह, लेकिन वो और इट वाज अनप्रेडिक्टेबल एट टाइम्स। मतलब ये भी था कि हिज फोर्थ सन देवदास, when he was being born, he worked as a midwife. He delivered the child, at that time. And he was, as you saw, he said, how could I leave my wife of 62 years in her last days, ये नहीं है कि हाँ, he was a very determined, very strict disciplinarian. आपकी जो बाहर प्रदर्शनी में फोटो आपने लगवाई है, उसमें कस्तूरबा की एक फोटो मेरे ख्याल में कमला देवी जी के साथ है, जिसमें नीचे वो कैप्शन लिखा है, वी आर वॉरियर वाइफ्स। तो गांधी जी के जीवन में, उनके कर्म में क्या भूमिका कस्तूरबा की, या क्या योगदान उनका रहा था आपकी नज़र में, जब आपने शोध किया? मैं उसको अगर आप इतना वक्त है तो मैं एक पेज पढ़ना चाहूँगा, जरूर पढ़ें। लेकिन कस्तूरबा से वो डरते भी बहुत थे, और उनको डराते भी बहुत थे। जैसे तो कभी जैसे कस्तूरबा गांधी ने कहा कि मैं खादी पहन के खाना नहीं बना सकती, क्योंकि भाई उस समय कोर्स खादी आती थी बहुत ज़्यादा, कोई अपने हाथ से बनाते थे, और या इनकी जो शिष्या थी वो बनाती थी, तो इतनी भारी होती थी कि वो पहन के कोई काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने ठीक है, फिर तुम्हारे हाथ का खाना हम नहीं खाएंगे। और आप कभी कई बातों में ऐसे ही वो उनका भी सुनते थे। तो ये एक जैसे कॉमन हस्बैंड वाइफ की लाइफ होती है, उस तरह की थी। हाँ, ही वाज अ ह्यूज मैन, सो वाइफ और द चाइल्ड और एनीबडी अराउंड हिम वुड लिसन टू हिम, बट द कंट्रीब्यूशन वाज इमेंस। मतलब वो स्तंभ थी उनके लिए। और उसके लिए मैं एक पेज पढ़ूंगा जो 5 मिनट लगेंगे, जो मुझे मतलब इट टचेस माय हार्ट, सो आई थॉट आई शुड। The march, her husband, her son Manilal, and grandson Kanti, who was 19 years old. She was inspired by the powerful symbolism of the march, but naturally worried for her family. Gandhi made it clear to the marchers, you must prepare to die. The British may use guns, but you must not fight back. Ba had woken before 4 a.m. on March 12, the day the march commenced, and dressed quickly. She had a lot to do that day. She was also aware of the crowd of journalists and photographers who had camped overnight outside the ashram. Ba made her rounds, waking everybody for prayers, and also overseeing preparation for the food that the marchers would carry with them. As they gathered, the wives of the marchers who would be left behind had mixed emotion. Sushila, Manilal's wife, his son's wife, her daughter-in-law, burst into tears while saying goodbye to her husband and ran into Ba's arms. Nearly every woman was in tears, not knowing the fate of the men to whom they were bidding farewell. Ba then came forward, according to her biographers, her grandson Arun and wife Sunanda, who gave the following account in their book published in India, The Untold Story of Kasturba, wife of Mahatma Gandhi. Our men, I quote, our men are warriors, unquote, Kasturba declared. We are warriors' wives. We must give the men courage. We knew that our husbands may not come back. This is how she gave courage to everybody. In fact, some of these things, it was too long to write.
that the Kantilal had just got married, and his wife just fainted, you know. And that's what provoked Ba to. नहीं, आपकी किताब में एक और बहुत मार्मिक प्रसंग है कि जब हरि भाई अपनी माँ से मिलने आते हैं रेल में, तो वो कुछ संतरा अपनी माँ को देती है और कहते हैं बापू को न देना, और बापू से कहते हैं जो बहुत बड़ा प्रसंग है, उसमें लग जाएगा, उसे आप पढ़े नहीं, मगर मुझे लगता है वो भी कहते हैं कि जो कुछ आज बापू हैं वो इस कारण है कि पीछे संबल बा का रहा था। एक और मार्मिक प्रसंग है जो शायद आप पढ़ना चाहें कि देहांत के ठीक पहले बापू को जो पूर्वाभास हो गया था कि शायद मृत्यु आसन्न है, और तब वो ये कहते हैं कि विचार शायद नहीं मार सकता है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो एक संदेश आपकी किताब में बहुत स्पष्ट रूप से बिना साफ साफ शब्दों में कहे आता है कि गांधी की जीवनी के दो पक्ष हैं, कि लोगों को उसमें अंतर विरोध दिख सकता है, मगर आप कहते हैं कि गांधी ने स्वयं लिखा है कि चिपके रहना किसी विचार से कोई खास बहादुरी नहीं है, मेरे विचार बदलते रहे हैं, और यदि आप मुझे पागल नहीं समझते, जो मैंने आखिर में बात कही उसको सही मान लें। मगर वो प्रसंग नुआखाली वाला, जब गांधी के सपनों का हिंदुस्तान शायद नहीं हासिल हुआ था और वो विभाजन से भी बड़े परेशान थे, तो वो नुआखाली वाले प्रसंग में आपको लगता है कुछ उल्लेखनीय बात ऐसी है जिसके कारण उनकी हत्या तक हुई? नहीं, वो वहाँ तो जो नुआखाली में तो गए थे, और जो उन्होंने, जैसे माउंटबेटन ने कहा कि यहाँ वेस्टर्न फ्रंट पे हमारी पूरी आर्मी लगी हुई है और शांति नहीं ला पा रही है, वहाँ एक आदमी की आर्मी है नोआखाली ऑन ईस्टर्न साइड, और उसने सब शांति बना के रखी हुई है। तो लेकिन जहाँ तक आपका पूर्वाभास का, तो आपको अब आज की पीढ़ी का तो नहीं पता, हम लोग की जो पुराने ज़माने में या पुरानी पीढ़ी में हम लोग को मतलब याद आता है कि जब भी दादी या वो किसी की डेथ होती तो वो लोग 1-2 दिन पहले कहने लगते कि हमारा अंत आ गया है। ऐसा होता, मतलब अब तो नहीं लोग कहते हैं, आप तो हॉस्पिटल जाते हैं, स्टेंट लगा के चले आ जाते हैं, सब ठीक हो जाए। लेकिन उस समय की बात होती कि भाई उस समय उनको बेड से उतार दिया जाता था, गंगा जल प्राप्त है, मतलब ये लोगों को भी पता लग गया, तो ऐसा आभास हो गया था गांधी जी को। अब हम 29 जनवरी की बात बता रहे हैं, 30 को उनकी हत्या हुई थी, 29 तारीख की बात बताते हैं कि सुबह उन्होंने अपना अनशन वो फास्ट ख़त्म किया था, वो जो पाकिस्तान को 64 करोड़ देने के लिए जो उन्होंने किया था, जिसके कारण कि उनको मेन कारण जो था, उसको गोडसे ने ये सोचा कि ही शुड गो नाउ, एंड वो उस दिन सुबह इनसे कृष्णा हथी सिंह आई, मतलब वो नेहरू जी की सिस्टर, अपनी फैमिली के साथ, उनके साथ इंदिरा गांधी थी और 4 साल के थे राजीव गांधी, वो भी आए। तो जब ये लोग बात कर रहे थे, तो जब उन्होंने देखा, दो द प्रिंसेस हैव कम टू सी मी, यू नो, वेयरिंग ब्राइट साड़ीज एक्सेट्रा, दिस इज हाउ गांधी कमेंटेड। तो जो राजीव गांधी थे, तो जहाँ फूल पड़े हुए थे, तो उन्होंने फूल धीरे धीरे उनके पैर पर सजाना शुरू, 4 साल के बच्चे थे, तो गांधी ने उनका कान पकड़ा और ये कहा कि पता है ये जो फूल है खाली मरे हुए आदमी के ऊपर लगाया जाता है। ये 1 दिन पहले की बात है, और ये कृष्णा हथी सिंह ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, वहाँ से मैंने लिया। और उसके बाद लोग इनसे मिलने आए, बन्नू एक जगह है, आपको सबको पता होगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर साइड में, वहाँ से लोग आए, गांधी मुर्दाबाद, अब चले जाइए, आपका काम हो गया, ये हो गया। तो बन्नू से कहने लगे कि देखो इस तरह की बात सुन के लगता है कि मैं अब 1-2 दिन का रह गया, उससे ज़्यादा मैं नहीं चलूँगा। इस तरह के और भी मतलब अभी पढ़ूँ तो किताब में, बट आप लोग पढ़िएगा किताब को, अगर आप पढ़ के सब सुना देंगे तो किताब लोग खरीद के कहाँ पढ़ेंगे? ऐसे कम से कम 5 या 6 29 जनवरी से। और अब जैसे एक और आया मनु बहन, ये लोग नॉर्मली इनको बाद में फास्ट के वॉक कराते थे, ये उस दिन अकेले चल रहे थे अपने हॉल में, बिरला भवन में। तो बनु ने कहा बापू आप तो बड़ा अजीब लग रहा है, आप ही रिमेंबर्ड टगोर दिस थिंग, एकला चलो, he says he kept singing and he kept walking from one corner to another. I mean he somehow knew that because he wanted to live for 125, he was preparing himself for 125 years। जो उनकी डाइट थी और जो उनका दिनचर्या थी, उससे नहीं लगता था कि वो कभी मरेंगे। ये तो इस तरह का हुआ। तो प्रमोद भाई, गांधी जी की जीवनी में 2-3 प्रसंग और हैं जो मतलब
आमतौर पर पाठ्य पुस्तकों में जो गांधी पढ़ाए जाते हैं उसमें होता है कि वो नेहरू के पक्षधर थे, सुभाष से उनका बैर था, या ऐसा था कि टैगोर के संग उनकी एक बहस चरखे को लेके, मशीन को लेके चलती थी। तो मुझे लगता है कि आपकी इस किताब में, जैसे अभी आपने बन्नों का जिक्र किया, तो उसमें वो तो अत्यंत दुर्लभ चित्र हैं जब वो 30 के दशक में उत्तर पश्चिमी सीमांत में गए थे और लगभग महीना 1.5 महीना वहाँ रहे थे, और वो लाल कुर्ती वाले खुदाई खिदमतगार और बादशाह खान के चित्र वहाँ दिख रहे हैं। तो वो जो गांधी का अंग्रेजी मुहावरे में फुटप्रिंट कहेंगे कि उनका पद चिन्ह उस पूर्वोत्तरी सीमा, पश्चिमोत्तरी सीमांत से लेकर नोआखाली तक और कौसानी में जहाँ नसक्ति योग की टीका उन्होंने लिखी वहाँ से लेकर वैकुम तक। बल्कि बड़ा विचित्र है कि परसों एक लड़का जो मुझे किसी होटल में मिला, वो वेटर था, तो उससे मैंने पूछा तो हिंदी बड़ी अच्छी बोल रहे हैं मगर उसमें कुछ उच्चारण में दाक्षिणात्य स्वर था। तो उसने कहा मैं केरल का रहने वाला हूँ, और फिर उसने मेरा ज्ञानदान करते हुए कहा मैं केरल में, आपको शायद पता ना हो, मैं वैकुम का रहने वाला हूँ जहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो वो 27-28 वर्ष का लड़का था, और मगर उसकी बात गलत नहीं थी। अगर वो मुझे याद नहीं दिलाता तो मुझे वैकुम नाम सुनकर सत्याग्रह तो याद नहीं आता। गांधी दर्शन में वो एक चित्र बना हुआ है दिल्ली में वैकुम सत्याग्रह के समय का। मगर आपकी इस पुस्तक में मुझे लगता है कि वो कुछ चीज़ें जो हैं कि गांधी का रिश्ता टैगोर के साथ, गांधी का रिश्ता सुभाष के साथ, बल्कि मुझे तो सबसे अमूल्य वो नीति वो लगती है आपकी, जो आपने कुछ दस्तावेज इस किताब में, पाठक खुद अपना मन बना सकता है गांधी जी के बारे में, आप कहते कुछ नहीं है, मगर आपने वो चिट्ठी दी है जब गांधी सुभाष को बतलाते हैं तो बीमार हो ये खाओ, और उसमें मांस भी है, उसमें चाय भी है, उसमें अंडा भी है, उसमें प्याज भी है। तो वो बड़ा उसकी अंतर्दृष्टि नहीं मिलती है। उस समय होता क्या था, आज की तरह का डिसएग्रीमेंट नहीं होता था। उस समय पीपल यूज्ड टू अग्री टू डिसएग्री, यू नो। मतलब आप जो आपस में नेहरू जी और गांधी जी में कितना ज़्यादा, वो तो लेफ्टिस्ट नेहरू जी पूरे, गांधी जी वो ऑलमोस्ट राइटिस्ट, यू कैन से, ही हैड हिज ओन गांधीज़म, बट लेकिन ये नहीं कि कोई परमानेंट दोस्ती या मतलब परमानेंट दुश्मनी है या कोई, या फंडामेंटली गलत है। खाली 1-2 लोग थे, जैसे अम्बेडकर जी से उनका ज़रूर था, क्योंकि वो अपनी लोग कॉन्स्टिट्यूंसी लेके चल रहे थे, अम्बेडकर जी अपनी लेके चल रहे थे, गांधी जी अपनी लेके चल रहे थे, उनकी अपनी थिंकिंग। लेकिन अगर थिंकिंग में जब कभी डिफरेंसेस थे तो वो ऑन टॉपिक टू टॉपिक, ऑन इशू टू इशू होते थे। कभी ये नहीं कि वी डिसएग्री विद दिस जेंटलमैन फॉरएवर, यू नो, ऐसा कभी नहीं होता था। तो सुभाष चंद्र बोस से भी गांधी जी के नॉन वायलेंस को तो कभी वो कभी छोड़ नहीं सकते थे। और सुभाष चंद्र बोस at some point decided that is not the way forward, so they parted company. But in his last in one of the All India Radio broadcast हुई थी from Singapore or somewhere in Far East, he said, "Oh, father of the nation, I want to tell you that because of your blessing, we have succeeded here." You know, ये जब वो अलग हो गए थे, तो इस तरह का उस समय का पॉलिटिकल संबंध होता था। आज तो भाई नेचुरली हर चीज़ बदली है, तो सब बदल गए। पूरी प्रशंसा करते हैं, मगर ये जो गांधी के सपनों का भारत था, और वो क्या आज़ादी के बाद एक कदम भी उसकी तरफ विधिवत कोई बढ़ा? क्योंकि दूसरा सपना औद्योगिकरण वाला, नगरीकरण वाला था, और आज हमको गांधी की 150वीं जयंती पर पूरा करते ये एहसास होता कि बहुत सारे हमारी दिक्कतें इस कारण है कि हमने उस सपने को पीछे छोड़ दिया, और हमारे लिए हिंद स्वराज एक पौराणिक किताब बन गई जो दकियानूसी से भरी थी। मगर गांधी तो अपने विचारों को निरंतर बदलते रहते थे। हाँ, लेकिन गांधी अभी भी होते, शायद अभी भी अपने विचार को बदल देते। ये मैं नहीं कहूँगा कि हम, और इट्स नॉट पॉसिबल कि समय के साथ वो गांधी जी की कई चीज़ें थी जो काफ़ी मुझसे दे वर नॉट प्रैक्टिकल ऑल्सो। जैसे वो कहते थे, उन्होंने कहा कि किसी ने सवाल पूछा, वन ऑफ दी फॉरेन वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट, कि जब हिरोशिमा पर बॉम्बिंग हुई थी, अगर यहाँ पर आपके सामने होता है तो क्या होता है? जब तो मैं बोले पायलट के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, और हो सकता बॉम्ब वो फेंकता ही नहीं। तो ये मतलब ये सब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। या हिज होल थिंग अबाउट अगेंस्ट मशीनरी, अगेंस्ट मॉडर्न मेडिसिन, ये सब चीज़ वो खुद ही बदल देते मेरे ख्याल से। और इट्स ऑल वेरी नॉट वेरी करेक्ट टू एक्चुअली जज somebody from today's this thing, or somebody who was assassinated in 48, और या उनकी थिंकिंग उस वक्त
आज हम करें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है। नहीं, एक जो उनकी अपनी परंपरा में राजमोहन भाई हैं, तो उन्होंने एक वो किताब लिखी थी 8 मुस्लिम माइंड्स वाली, उसमें वो शब्द का प्रयोग करते हैं रिवेंज एंड रिकन्सिलिएशन का। और जब दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के बाद शांति आई, तो फिर वो नई तरह का सुलह-कुल हुआ कि द कमीशन फॉर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, और वो चर्चा आज तक श्रीलंका में चलता है कि देयर विल बी नो क्लोजर टिल, जब तक वो सुलह नहीं हो जाए। तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें, उसका जिक्र मुख्य सचिव जी ने भी अपने भाषण में किया था कि अगर गांधी का हम अध्ययन करते हैं, और मुग्धा ने भी उल्लेख किया था कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, तो उसका एक पक्ष तो वो है जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में शोधकर्ता श्रीधरानी साहब थे, जिन्होंने अपनी पीएचडी डॉक्टरेट डिसर्टेशन उस पर की, या ऐसे यूरोपीय विद्वान हैं यूहान गाल्टुक जैसे जो थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट करते हैं। मगर एक फिर फिल्म है वो संजू बाबा वाली जो गांधीगिरी की है, तो कहीं ना कहीं गांधीगिरी का कोई रोल सार्वजनिक जीवन में है। अब जैसे कल अगर आप वो जेएनयू के दंगे को देखें, तो पुलिस वाले लाठी भांज रहे हैं और लड़के निहत्थे खड़े हैं। मैं कोई पक्ष किसी राजनीतिक विचारधारा का नहीं ले रहा हूँ, मगर यदि पुलिस वाले झप्पी पप्पी वाली रणनीति अपना रहे होते तो शायद वो उतना संकट पर्दे पर नजर नहीं आ रहा होता। तो आपको ये लगता है कि वो गांधी की जो प्रवृत्ति थी कि दुश्मन से बैर न करो, दुश्मनी आप उस बुराई से करो जिससे आप संघर्ष कर रहे हो, उसकी सार्थकता बची रहती है। और जब तक वो कार्यक्रम स्कूल में कहीं शुरू नहीं होता है, पाठ्यक्रम से इतर, तब तक लोगों को मन बदलने में, जैसे मैंने कहा ना कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी स्टेचर ऑफ द पर्सन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कौन उसको रिजॉल्व करने में लगा हुआ है? इज इट कांस्टेबल और इज इट DIG? यू नो, अच्छा, सबका अपना। गांधी जी में सबसे बड़ी बात ये थी कि एक तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव चीज़ थी वो तो थी, लेकिन हिज मेथडोलॉजी वाज आल्सो यू नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इनफैक्ट वो मेथडोलॉजी जो है वो कभी नहीं ख़त्म होगी। शायद उनकी जो फिलॉसफी है वो बदलती रहे और उसका इंटरप्रिटेशन बदलता रहे, लेकिन जो उनकी मेथडोलॉजी थी वो हमेशा एप्लीकेबल होगी। प्रमोद, बिल्कुल अंत में, इससे पहले कि हम लोग सवाल जवाब श्रोताओं से भी लें, एक चीज़ मुझे और बड़ी मजे की थी, आपने मेथडोलॉजी कहा, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा टच, जो आजकल नौटंकी शब्द कहना बड़ा बुरा लगता है, मगर थोड़ा नाटकीय तत्व उनके आचरण में था, जो प्रतीकों को एक ऐसा महत्व देता था कि लोग भूल नहीं सकते थे। गांधी जी खुद नमक नहीं खाते थे, मगर नमक सत्याग्रह उन्होंने कर डाला। गांधी जी ने आने के साथ कहा कि मैं हिंदुस्तानी गरीब के साथ की तरह रहूँगा, कपड़े का चोला बदल डाला। गोलमेज सम्मेलन में गए तो एक काली और एक सफ़ेद बकरी अपने साथ लेके चले गए, भले उनका दूध उन्होंने वहाँ पिया नहीं पिया ईश्वर जाने, वो बकरियों का क्या हुआ ये भी हमें नहीं पता है। मगर कुल मिलाकर वो एक विदेशी, ये सिंबॉलिज्म था। देखिए, नमक जो था वो बिकता था, मतलब जो मिलता था इनको वो 10 पैसे को मिलता था, उसमें 12 आना टैक्स लगाती थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट 12 आना टैक्स लगाती थी। तो दिस वाज अ सिंबॉलिक यू नो हिज फाइट। इट इज नथिंग टू डू विद वेदर ही लाइक्स सॉल्ट और ही डजंट लाइक सॉल्ट। दैट्स व्हाई आई सेड हिज मेथडोलॉजी, हिज ये वो कभी स्थिर नहीं बैठते थे, कुछ ना कुछ तो सत्याग्रह करना है, सत्याग्रह का नाम ढूंढना है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना है। तो प्रोफेसर टीचर्स के बाद सेंट स्टीफेंस में गए, वहाँ पर पूछ रहे हैं वो क्या होना चाहिए। और आपके विश्वविद्यालय में जब वो गए तो वो राजा महाराजा को उन्होंने कहा क्यों इतने सोने चांदी मोती के गहने पहने हो, वो बड़े उखड़ गए लोग वहाँ, जिन्होंने कहा कि किसको पकड़ा है वो आप। एनी वेसेंट भी उन्होंने कहा स्टॉप गांधी, स्टॉप टॉकिंग नाउ, यू नो। और एक साल की बात, मगर वो चुप हुए नहीं थे। नहीं, आपकी पुस्तक में एक और चित्र है जो मुझे बड़ा रोचक लगता है कि गांधी जी दाहिने हाथ से भी लिखते थे और जब थक जाते तो फिर बाएं हाथ से लिखते थे। और प्रमोद ने उसके नीचे टिप्पणी की है कि उनके बाएं हाथ की लिखाई उनके दाहिने हाथ की लिखाई से, दोनों ही लिखावटें उनकी काफी खराब थी। एग्जीबिशन में मैंने पेज लगाया है। तो मुझे लगता है कि लोगों को उस चीज में भी बहुत रुचि होती है कि गांधी जी एक हाड़ मास के आदमी भी थे। बिल्कुल, तो वो ज्यादा हाड़ मास के थे, महात्मा कम थे। वो तो महात्मा लोगों ने उनको बनाया, खुद भी कहते थे कि मैं महात्मा नहीं हूँ। और ये जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बाहर एग्जीबिशन में भी है। शुरू जो पहला जिक्र आता है उसका, वैसे तो लिखते थे कई बार कि भाई मैं राइट हैंड इज टायर्ड नाउ, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू विद लेफ्ट हैंड। लेकिन ये हिंद स्वराज जब अपनी लिख रहे थे, फ्रॉम हिज जर्नी फ्रॉम कमिंग बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू लंदन, ही रोट हिंद स्वराज बाय हैंड, 271 पेज बुक, जिसमें कि 60-62 पेज उन्होंने लेफ्ट हैंड से लिखे हैं, बाकी राइट से लिखे हैं। वो बाहर है वहाँ पर प्रदर्शनी में। तो ये तो बड़ी गजब की बात है कि भाई देखिए, ही वाज इक्वली गुड एट इट।
नहीं, आपने घड़ी का जिक्र किया था जिसकी फोटो यहाँ नहीं छपी हाँ, है। मेरे लगा हम लोग यहाँ प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी में बैठे हैं कि गांधी के जीवन का एक वो पक्ष था जो समय के सदुपयोग वाला, कि कई पत्र वो लिखते हैं, वो कहते हैं मैं रेलगाड़ी में बैठा हूँ, हाथ हिल रहा है, 3 पंक्ति से अधिक नहीं लिखूंगा मीरा बहन को, मगर मैं रेलगाड़ी में 3 बजे सवेरे पत्र लिख रहा हूँ कि जब वो उस दिनों उस तरह का ईमेल नहीं थी कि नागपुर पहुँचेगा तो मैं डाक के उसके बॉम्बे में डाल दूंगा। तो वो समय का जिस तरह का सदुपयोग करते हैं कि जहाज में बैठकर उन्होंने वो लिख डाला हिंद स्वराज, कौसानी में 3 हफ्ता रहे तो अनासक्ति योग की टीका कर डाली। तो मुझे लगता है वो पक्ष गांधी के जीवन का जो वो समय के बड़े पाबंद थे, जबकि आखिरी मिनट में भी उनको 5 बजे ठीक उठना था अपने उसके लिए। जब 5:05 हो गया तो सरदार पटेल और उनकी बेटी मनी बहन साथ में थी और इधर मनु बहन साथ में थे, वो उनकी घड़ी दिखा रहे हैं उनको कि देखो 5:05 हो गया। सो देन ही गॉट अप एंड सेड नाउ आई मस्ट ब्रेक, एंड देन ही वॉकड, यू नो। और वो आपका अंतिम वाक्य फिल्म में है, वो शॉर्टकट टू वो लगाया नहीं मैंने, when he was shot that watch, that clock or whatever your pocket watch that you call, वो 5:17 पर ठीक रुक गई थी उसी वक्त। और वो आज मनी भवन जो है बॉम्बे में, वहाँ पर ये उसका डिस्प्ले किया हुआ है, which is very moving. I thought, you know, कि it must have because of the bullet etc. प्रभु, मुझे लगता है कि लोग आपसे पूछना भी चाहेंगे तो कुछ समय हम उनके लिए छोड़ें, और आपको भी जवाब देना हो भाई, मैं खाली जवाब दे ही नहीं करूँगा ना। मैं तो यहाँ सूद काट रहा हूँ। आप लोग देता हूँ आप लोग जो कुछ पूछना चाहें प्रमोद से पुस्तक के बारे में। खाली सेक्स और पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, बाकी सब करूंगा गांधी जी। फिर बचेगा क्या? फिर तो खाना बचेगा, खजूर खाने के, संतरा छीलने के, केले खाने के। दूसरा नॉन वायलेंस, उनसे चर्चा नहीं करूंगा। नॉन वायलेंस पर गांधी पर ये कहा जाता है कि पहले काफी कंडेम किया जाता था, नॉन वायलेंस को लेकर कई सारी बातें कही जाती थी। पिछले 2-3 साल से जो बुक्स आ रही हैं उसमें खास तौर से Gandhi's non-violence was not absolute. Gandhi was not absolutism of. What do you say about that? Well, first thing I'll say, there's nothing absolute in this world for anything, even for. But in this case, I'll say there are 2 or 3 instances people quote. One is that his participation in the Boer War, you know, in South Africa. But वहाँ पर he acted as a medical cop. 20-25 लोगों का था. He didn't pick up a gun to shoot anybody or to protect himself. He was a medical cop. उसके बाद अभी कल परसों young gentleman, very bright young gentleman was with us. He mentioned कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि डू और डाई, और उसमें वायलेंस पर भी छोड़ दिया था सबने। उस वक्त भी जो बात हुई थी वो जो कांग्रेस वालों ने जरूर ये बात कही थी कि भाई ठीक है, दिस वोंट बी लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1922 का था, वो नहीं, ये इसमें लोग अगर वायलेंस पे जाएंगे वी विल नॉट स्टॉप। गांधी जी का ये कहना था कि दिस इज नॉट, क्विट इंडिया मूवमेंट इज अ इंडिविजुअल मूवमेंट, इट इज नॉट अ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। Maybe it was his escape route, I do not know, I cannot say for sure. लेकिन you cannot blame him for non-violence even in the Quit India movement. और मुझे कोई ऐसी जगह नहीं लगती जहाँ पर he supported non-violence, because this was non-negotiable for him. Non-violence was non-negotiable. He would never agree to anything which was violent. He told you, army is necessary for the defense of the country. And he especially supported that why these armies not being sent to Kashmir immediately. And it was rightly, that's why he's not idealist non-violence violent, but the practical non-violence movement was there with Gandhi. तो blame करने की आवश्यकता नहीं है जब जी thank you. जैसा कि आपने गांधी जी के बारे में इतनी बात कही है, तो मैं सिर्फ एक जानना चाह रहा हूँ कि गांधी जी के लिए कहा जाता है कि वो कुशल रणनीतिकार भी थे, क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज मूल रूप से व्यापारी हैं, और व्यापारी को अगर कहीं उस जिले से या शहर से बाहर भेजना हो तो उसके व्यापार पर उसकी मार करनी चाहिए। अगर हमने उसके व्यापार खत्म कर दिया तो वो व्यापारी स्वतः ही अपने जगह छोड़ देगा। तो शायद ये जो एक तो विदेशी कपड़ों की होली जलाना और ये जो आपका नमक सत्याग्रह है, ये दोनों शायद उनकी रणनीति का इसमें हिस्सा रहे हैं।
इस चीज़ का, और उन्होंने कहीं ना कहीं इसका महत्वपूर्ण उसका आने वाले समय में उसका एक अंग्रेजों की सबसे बड़ी कमर उन्होंने तोड़ी हुई है इस चीज़। तो मेरा मानना है कि इसके बारे में उनकी जो रणनीति जो मानी गई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए गांधी जी को मैं एक प्रसंग है इस किताब में कि लुइस फिशर जो उनके बहुत करीब हो गए थे, उन्होंने सबसे अच्छी उनकी बायोग्राफी लिखी, और जो अब तक जो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो सबसे अच्छी किताब मैं भी मानता हूँ, रिचर्ड एटनबरो ने पूरी फिल्म अपनी बनाई थी उसी किताब को बेस करके। वो उनके किसी अमेरिकन दोस्त ने कहा कि भाई तो मेरे लिए ये 2 पिक्चर दे रहा हूँ, ये गांधी जी से साइन करा देना। तो जब लुइस फिशर उनके पास गए तो गांधी जी हाँ कर दूंगा, मुझे 20 रुपए चाहिए इसके लिए, तो मैं दूंगा। तो साथ में देवदास बैठे थे, तो बोले बापू ये तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है तुम कहते हो 10 रुपए कर देते हैं, 10 रुपए में हो जाएगा। फिर जब साइन कर दिया 10 रुपए मिल गए। तो जब बाहर आए तो लुइस फिशर ने कहा कि देखो मुझे तो लग रहा था कि अगर 5 रुपए देते तो 5 रुपए में ये साइन कर देते। तो सच बात तो है, उन्होंने नफ्स तो पकड़ रखी थी कि ये दे आर हियर फॉर कॉमर्स, दे केम हियर फॉर। जैसे अभी आप विलियम डैलिम्पल ने लिखा है अपनी किताब जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर, उसने दिखाया कि मैं तो अभी पूरी पढ़ी नहीं कि जब वो आए लोगों की अंग्रेजों की आंख खुल गई थी कि किस देश में आए हैं, कितने जवाहरात कितना वेल्थ है यहाँ पर। तो ये तो उसमें तो कोई शक नहीं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हेलो सर, एक चीज़ जो मुझे हमेशा मतलब कई बार आई क्वेश्चन इज, यस वी हैव अ लॉट ऑफ हिस्ट्री ऑन गांधी जी, हम बहुत बातें करते हैं, हम कभी ये क्यों नहीं आगे बढ़ाते, लाइक फॉर स्पेशली फॉर द यूथ ऑफ कंट्री, इवन यू मेंशन्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग द गांधी वे, maybe we could have a course on it, maybe we could have a book on it, somewhere where we could actually use his principles to solve the problem of the 21st century जो आज है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वालों को देना चाहिए। एक बार फिर से कहें आप, मैं तो किताब लिख के ये बता देता हूँ इस तरह से कर सकते हो, बाकी कराना तो इनका काम है। आप जस्ट मेंशन्ड दैट CS sir also, Chief Secretary साहब also mentioned actually, जी मेंशन किया था अभी जी कि गांधी पीस एंड नॉन वायलेंस सेल और गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का गतिविधि शुरू हो गई है बाकायदा, और स्कूलों में खासकर आपके प्रश्न का एक ईमानदार उत्तर ये है कि प्रमोद ने कुछ देर पहले कहा था कि गांधीयन मेथड तब सफल होगा जब गांधीगिरी करने वाला अभिनेता संजू बाबा न हो, बल्कि शायद उस जिले का वो डीएम पुरुष या स्त्री हो जिसकी छवि खुद कमोबेश बेदाग है, जिसके बारे में लोगों को विश्वास, जैसे कल भी जो बड़ा हो रहा है, तो मेरे सामने स्थिति ये है कि आप में से अधिकांश लोगों को जीवन में अनुभव होगा जब आपको राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, वर्ग संघर्ष के कारणों से, जातिगत वैमनस्य के कारण ऐसी समस्याओं का समाधान करना होगा। तो अगर आप गांधी तरीका अपना रहे हैं गांधीवादी, तो आपके जीवन में भी तो कुछ गांधीवाद कहीं कहीं झलकना चाहिए ना। ये तो नहीं होना चाहिए कि महक रहे हो आप किसी ऐसे पेय पदार्थ से जो वर्जित हो, खाते आप रोज ढाबे में बैठ के चिकंदर ले हो, और फिर आप कहें कि बापू ने मुझे सिखाया था, मैं यहाँ आई हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, आप कर जाएं, तो कौन मानेगा? ये तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आदर्श है। लेकिन जब लोगों से 2 बातों की आलोचना उनकी सुनता हूँ, उसका जवाब मेरे पास नहीं आता। जब देश का बंटवारा हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान को एक राशि दिलवाई, शायद 50 लाख थी, 64 करोड़, हाँ 64 जो भी है। तो ये राशि जब मेरे सामने सवाल आता है तो मैं चुप हो जाता हूँ। और 2-3 और एक मतलब जब निष्पक्ष होना चाहिए, तो उस समय मुस्लिमों के साथ उनका जो लगाव था, मतलब लगाव सबके साथ होना चाहिए निष्पक्ष रूप से, लेकिन उनका लगाव भी एक देखने में आया, ऐसा लोग कहते हैं उस समय के, क्योंकि उन परिवार में जाके रहे। ये 2 बातों का मेरे को समाधान नहीं मिल पाता। He was soldier of truth and he realized कि वो 64 करोड़ रोकना गलत बात होगी, क्योंकि ये पहले एग्री हुआ था पार्टीशन के वक्त, टर्म्स ऑफ पार्टीशन में, कि 64 करोड़ उनको दिया जाएगा। कैबिनेट का कहना ये था कि we cannot transfer 64 crores at a time when the country is at war with us। ये एक प्रैक्टिकल बात थी, लेकिन गांधी जी जो थी, गांधी जी बियॉन्ड प्रैक्टिकल, हिज ट्रूथफुलनेस वाज बियॉन्ड। इसे नहीं, सही बात ये है कि अगर ये चीज़ एग्री हुई है तो हमें देना चाहिए। तो ये अब आप दिस इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एक बात और है जो बिल्कुल आपको भी साफ मुझे कहने में हिचक नहीं है कि
आप जब कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के पक्षधर थे, तो वो मुसलमानों के पक्षधर नहीं थे। इस उदाहरण में जो आप दे रहे हैं वो पाकिस्तान के पक्षधर थे और बंटवारे के वक्त, और वो उन मुसलमानों को ध्यान में रखकर ये रियायत या समझौता कर रहे थे जो विभाजन के बाद भारत में रहे थे। आज भी भारत में मुसलमानों की संख्या पाकिस्तान के मुसलमानों से अधिक है। तो गांधी जी ने उस विभाजन को अंतिम नहीं माना था। उनके मन में शायद ये आशा बची थी कि एक जो लोहिया बाद में कहते कि महासंघ बनेगा, वो विभाजन फिर अखंड भारत की ओर जाएगा, जो वो उस वक्त की बातें थी। तो मेरे ख्याल में एक तो पक्ष ये है, और दूसरे मेरे ख्याल में आप इसे याद रखें कि गांधी जी सुलह चाहते थे दो पड़ोसियों के बीच विभाजन के बाद भी। तो उस समय तक ये संभावना शेष थी कि पाकिस्तान हमारे साथ युद्धरत था कश्मीर में, मगर तब तक ये 65, 71 और 98, 99 नहीं लड़े गए थे। कश्मीर में यह युद्ध नहीं लड़ा गया था। तो मेरे ख्याल में वो गांधी जी के मन में सांप्रदायिक सद्भाव स्वदेश में बचाए रहने की बात थी। तो वो कहते थे कि भाई हो सकता है, प्लान कर रहे थे कि 2 महीने बाद मैं जाऊंगा लाहौर और कराची दोनों घूम के आऊंगा। तो ऐसा कुछ उस समय था भी नहीं ना। अब ऐसा सेड दिस इज द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन and the level। और वो आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि अगर कोई शरणार्थी परिवार का व्यक्ति है जिसके घर में माओ बहनों के साथ बलात्कार हुआ हो, तो तमस फिल्म के दृश्य अगर आपको याद आए, झूठा सच आपको याद आए, काले कोस बलविंदर सिंह की आपको याद आए, अगर आपको लगे आप प्रभावित हैं उस दंगे से और विभाजन से, तो आप कभी माफ नहीं करेंगे उस व्यक्ति को जो उस वक्त ही कह रहा था कि इन लोगों को राहत पहुंचा पाएंगे। आज भी अगर आप देखें तो एनवी प्रॉपर्टी वाला मुकदमा अब तक अध्यादेश के बाद तय नहीं हो पाया है। तो जो राजा साहब महमूदाबाद हैं, उनके पिताजी पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए उनके पुत्र जो हिंदुस्तान में रह गए थे वो अपनी पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो तो विचित्र चीजें हैं उस जमाने की। Okay, we'll have one last question from the back, and then the sharpest critique I've heard of Gandhi is that his ideals are very upper caste. He has picked up very upper caste ideals in the manner that he has promoted vegetarianism, when the other half, the south half of Can I interrupt you right here? And I'm seeking forgiveness for Pramod, because this is food and food obsesses me. Now this, I think, is an extremely oversimplified generalization that Gandhi's ideas were upper caste. As far as I'm concerned, I don't believe in caste system. I happen to be unfortunately accidentally born in a Brahmin family, and no upper caste Brahmin would treat Gandhi as an upper caste. Please forgive me. I mean, that is the major problem which the Prime Minister has at the moment. I mean, Bhai Shah has a problem. The RSS with the leadership of the Chitpavan Brahmins would not accept anybody who's not a Chitpavan, Maharashtrian, Karade, Deshakta, Konkanasta Brahmin to be upper caste. So, हमारा जो residual DNA है, वो वैश्य को upper caste नहीं मानता. May I be forgiven for this? That's one. The second part is that he was not imposing vegetarianism of the upper caste in India. There are Brahmins in India who are Shaktas. My mother's clan, who are lusty, non-vegetarian, वो कालिका के मंदिर में बलि देते हैं। अब तो खैर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवा दिया, मगर पर्दे के पीछे बलि होती है और हम लोग अष्टमी के दिन प्रसाद मुँह से ग्रहण करते हैं। I can tell you the Saraswat Brahmins, the Maithil Brahmins, the Kashmiri Shemaite Brahmins, the Konkanas Brahmins, the Saraswat Gomantak Brahmins, the Bengali God Saryu Paril Brahmins, who are all lusty meat eaters. So whoever claims that unless you are a Vaishnava, and the third thing which Pramod's book brings out brilliantly, Gandhi's vegetarianism was not inspired by Indian tradition. It was following Tolstoy's vegetarianism, Dr. Louis Kuhne's vegetarianism, and his vegetarian slate of he was eating vegetarian food because he thought it was scientifically the trend in 1990s in England. And that is why he did not drink the bakri ka doodh jo sang leke gaye the, because he was eating his lunches in the vegetarian restaurant in London, where he had grown up. So Gandhi's vegetarianism is not the Indian Ayurvedic Sattvic Vedic vegetarianism at all. It's very well justified. And Nico Straits book brings it out very much. Sorry, I hope I answered your question reasonably. I'm a lusty non-vegetarian myself. सर अब क्योंकि खाने का भी समय हो गया है, तो मुझे लगता है कि हमें ये चर्चा वेजिटेरियन खाना है। हाँ, yes, absolutely सर। तो हमें जो है इसी मोड पर जो है इस कॉन्वर्सेशन को विराम लगा देना चाहिए। तो हम सभी को हाई टी के लिए भी आमंत्रित करेंगे, पर उससे पहले जो है मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ
कि आपने गांधी की किताब और उनके जो पिक्चर्स इलस्ट्रेटिव बायोग्राफी है उसके माध्यम से हमें गांधी जी के उन रोचक पहलुओं के बारे में बताया, द लेसर नोन स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, जो शायद जितने कम चर्चा हो पाती है, क्योंकि हम लोग जो है बहुत सारी उन चीज़ों पर चर्चा करते हैं, ट्रूथ है, नॉन वायलेंस है, अहिंसा है, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम और सुनना चाहते थे जो किताब में है, जो हमने पढ़ी हैं, जैसे कि उनका वायलिन बजाना जो शायद रह गया, उनके मेडिकल में डॉक्टर बनने का सपना जो शायद रह गया, तो हम वो सारी चर्चाएं जो हैं हाईटी बाहर है उस पर कर सकते हैं। मैं आप दोनों जी हमारे जो एस्टीम गेस्ट हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी हमारे जो प्रबुद्धजन यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी तरफ से आपको देती हूँ कि आपने जो है इस कॉन्वर्सेशन से एक और किताब के माध्यम से ये हमें साबित कर दिया कि हम 150 साल के उपरांत भी गांधी जी को जो है नए नए दृष्टिकोण से देखते हैं। और शायद मुझे ये कहीं ना कहीं उस कहानी की भी याद दिलाती है जो वन ब्लाइंड मैन, सेवन ब्लाइंड मैन एंड एन एलिफेंट है, जिसमें हर ब्लाइंड पर्सन जो है एलिफेंट को थोड़ा थोड़ा छूता है और कहता है कि यही एलिफेंट है। तो मुझे लगता है क्योंकि गांधी के बारे में हम समग्र रूप से जो पूरे अपने जीवन काल में लिख गए या कह गए या बता गए या कर गए, उसको जो अपने छोटे से टाइम में कही गए, शायद हम उसको 150 साल में भी लिख के, समझ के, बोल के नहीं समेट पा रहे हैं। तो हम लोग, क्योंकि सब लोग उतना नहीं पढ़ पाए हैं उनके बारे में, हमको जान पाए, सो वी आर ऑल लाइक ब्लाइंड मैन। इसलिए जो है कुछ कई बार हम ऐसी चीजें पूछते हैं जो शायद जो है हम खुद क्योंकि नहीं इतने पढ़े होते हैं या इतने नहीं समग्र रूप से होलिस्टिक रूप में जानते, तो शायद जो आपने आज ये चर्चा करी है वो मुझे लगता है कि गांधी जी का कुछ थोड़ा पाठ ही उसको कवर पाए हैं। इसके लिए तो मुझे लगता है कई दशक, कई सदियां आप बीत जाएंगी, फिर भी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने उन अनछुए पहलुओं का जो है हमें आज अपने चर्चा के माध्यम से हमें जो है एक छोटी सी झलक उसकी दिखाई है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। वी आर ग्रेटली ऑनर्ड एंड इंडीड इंडेटेड फॉर योर टाइम in writing the book and reading and bringing this to us, both in the form of the book and the exhibition. Now, may I request the OTS team to kindly give away mementos. May I request Director Sir to please give a memento to our chief guest, Shri D.B. Gupta Sahab, our Chief Secretary, Government of Rajasthan, and the President of the IAS Association, for sitting through the entire program. I was outside to get 2 books on Gandhi, please. Shelly Kishnani ji to kindly felicitate Additional Director Shri Himanshu Gupta ji, to kindly Shri Pramod Kapoor Sahab. May I request Additional Director Accounts, Srimati Sandhya Sharma. I thank all our lovely audience and all our print, electronic, social media and camera people who are here, and also now request our Director Sir for a formal vote of thanks, please. Wow, what a session. Jaipur at 292, Gandhi at 150, and Ripa at 63. So what a constellation of events and what a convergence of history. I really feel delighted as the head of the Ripa family in thanking you all respected and esteemed guests seated on the dais, especially D.B. Gupta sir, our respected and loved Chief Secretary sir, for sparing so much of time. I know that his list of do's doesn't end any day, and he keeps sharing it with me because I have been his probationer about 25 years back. So we shared that golden moment. So I'm really very touched, sir, by the amount of time and amount of patience which you gave here in going through the entire program. Sir has always been a source of inspiration for me, and
always been a helping hand in whatever innovative steps we have taken. So, delighted to mention that your motivation has resulted in government granting 20 crore rupees for the setting up of new auditorium for RIPA. And I also would like to share that we have decided to name that auditorium as Gandhi Auditorium. I would also like to thank Pramod Kapoor sir for coming and sharing a new perspective of Gandhi with all of us. We know the man, the Mahatma, the God, whatever we may call him, but still there is so much to be learnt from new perspectives, from new research works, from new anecdotes, stories, that every book which comes on Gandhi is an eye-opener for the society, and we can learn a lot from him. So I really thank you, sir, for sharing your views with us and blessing us with this book, lovely book, which we will get in the library of RIPA, and will like all the officer trainees to go through it. I also extend my gratitude and thanks to Pansar. Pansar has helped me during the tenure I was in Jaipur Metro. At that time, Metro was passing through a very rough phase because of the temples which were being displaced, and people thought that we were playing with history. But we came out with a film in which Sir gave his commentary, and we convinced the people that it is not tampering with history, but preserving the history along with going through development projects. So that was the message which he gave through his film, and that film basically was a game changer, and it molded the public opinion in favor of the metro, and we were able to get that metro and still running in the city, sir, with your blessings. So I thank you, Pansar, for that. Mugdha, I would like to thank. She was thanking me of providing the place for this event. I would rather like to thank her for giving me such a golden opportunity to host such a glorious event on these premises. I really appreciate her initiative and good work which she has been doing for the IS Association and for the service in general. And I would further extend my cooperation, Mugdha, for any such other opportunities which RIPA may provide for your literary and cultural events. I once again thank all the distinguished audiences also. I know many of the esteemed audiences are previous bureaucrats. They are sitting here. I would like to convey my regards to them. I wish you have had a good time. The last 2 hours would have been very fruitful to you. And here a message to all the officer trainees. We have the IS officer trainees sitting here. We have the Rajasthan Administrative Services and the Rajasthan Account Services. The 3 major services of the small stories, and build your career around them. Because if we just could focus on one person in the entire constellation of so many famous persons, it would be Gandhi which we should choose. And if we just choose Gandhi, we would have lived a very fulfilling life. Thank you so much. Thank you one and all. Thank you. हो गए हैं और 2 मिनट का समय आपका लेंगे और गांधी जी के एक छोटे से भजन वैष्णो जन तेरे नाम के लिए मैं बिस्वा साहब को बोलूँगी कि शॉर्ट में जो है एक बार उसके साथ हम उसका समापन कर लें। ये विभिन्न रागों में गाया जाता है, राग कामोद में गाया जाता है, विभिन्न गाया जाता है, लेकिन और बड़ा है तो मैं इसको छोटे रूप में अभी आपको पेश करूँगा। और जहाँ तक टेक होम के सवाल है, अभी सर ने बताया, डायरेक्टर सर ने, कि टेक होम क्या है। इसका टेक होम यही है कि पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे, ये टेक होम है उसका। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न मेरे। वैष्णव जन तो सकल लोक मां सहु ने वंदे,
वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो वणलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वाया रे। भणनर सैया तेनु दर्शन करता, भणनर सैया तेनु दर्शन करता, कुल एको तरता रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुख उपकार करे तो यह मन अभिमान